Hello everyone, welcome to workshop of Highway Design. I'm Arsha, your host for today's session. Let me give you a brief introduction about who we are. Protrainees is NSRCEL IIM Bangalore pre-incubated edtech startup. We have registered with Startup India, Startup Odisha and OCF. Landing skill requisites which precisely fit market demand is tougher than landing a job itself. That's where we come into play. We prepare engineering students to be industry ready by training them for the essentials required in the field. We believe that skill building is an extensive process. We believe which require detailed and practical knowledge with the help of our experienced experts. Our only aim is to build skilled workforce for the civil engineering industry and to create thought leaders of tomorrow. Protini brings you an involving industry ready environment to tackle the every shifting business scenario. As an educational institution, we upskill civil engineers in technical domains as per current industry trends from theoretical concepts like structural engineering, bridge engineering to software training like Oracle, Primavera, ETABS, AutoCAD, we can offer 360-degree holistic development required for a civil engineer to become a skilled industry professional. We recently conducted an industry-ready long process, course on tendering, billing, Primavera, highway engineering, etc. And good results in these sessions have motivated us to go beyond our boundaries and get more for all of you. To be updated with our upcoming amazing courses, go and follow our Instagram, Facebook, LinkedIn profile by the name Pro Trainee. Now, I would like to introduce our expert Rohit Rodia, sir, who have joined our forces to make everyone industry ready. I request sir to start the session. Thank you. Hope you enjoy the session. Happy learning. Good evening, everyone. My name is Rohit. As Arsha ma'am told everything about me. As work, I'm a student 70% from IIT Kharagpur in highway and transportation engineering. I have worked in the CD Jaipur, then some consultant in the Delhi. Okay, so uh, come to the point. I'm showing my PPT. My screen is visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Like say, what is the highway infrastructure? What is like first of all, what are the things that comes out in our mind? Okay, so say in the say जब आपके पास कोई आपको बोलता है कि like आपको say you have to do highway we have to work on a highway projects. So after before the highway projects we have to before please please mute yourself. Please mute yourself, everyone. Please, Adi Narayan, please mute yourself. Thank you. तो लाइक से जब कोई बोलता है कि आपको सबसे पहले हाईवे प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उससे पहले आपको कुछ प्री डिटरमाइंड वर्क करने होते हैं लाइक से कि आपको लाइक सबसे पहले आपके पास एक सर्वे कराना होता है आपको जिसको हम टेक्निकल वी कॉल इट टोपो सर्वे. ओके, apart from topo survey we have to do for the traffic survey also. Okay, so some for payment design we have to do the excel survey also. Okay, so after doing the survey on the field that is done by the some vehicles that NSV national survey vehicle, network survey vehicle. Okay, before that we are doing the manually. Okay, then after doing the when the surveyor completes things all the thing in the topo sheet, that is a delivery format. Okay, after that that sheet come to the designer. Okay, on the basis of that say let's say an example, if we have a 2-lane highway and we have to upgrade it to 2 to 4 lane. We need some ROW, that is right of way, from where we can stretch, say whether we have to extend on the right side only, on the both side or the left side. Okay,
if we are in widening on the both side, that is called the concentric widening. If we are extending on the one side, it is eccentric widening. Okay, so after doing that, we have to it will provide us, the surveyor will provide us the some key points, like the what is the center line coordinates, that is x, y, z. Okay, and the say whether when there are multiple points, let's say center line, existing ground, electric poles, there might be any utility also, electric pole also. Okay, then on the basis of that, we have to create our import that point in our survey sheet. Okay, and then we can edit in the point. If we want to change the demonstration, we can change it. Okay, if we want to change, like if we want to change like any, where we have to create a point group, say for the ground level, we have to make a separate okay, separate sheet, so we can make it. Okay, and template with style. Then apart from this, like say these are the when we are directly importing the point, these are the importing survey point. They are before doing that, we can create, for every project we can create our survey database. Like in the survey database, like say some we have to there, then there will be no like any when while we are designing the highway, हम डिजाइन करेंगे अपने हाईवे को, तो हमें अगर हम डेटाबेस से जाएंगे तो हमें उसमें दिक्कत नहीं होगा। और सर्वे पॉइंट जाएगा, उसमें आपको कुछ चेक्स लगाने होंगे। ठीक है, उसमें केरी लगा सकते हैं हम कि हमारा कैसा जीएल का कैसा पॉइंट है। जीएल को एक तरफ सेग्रीगेट कर लेंगे और सेंट्रल लाइन की तरफ कर लेंगे, और जो ट्रीज है वो उनको एक सेग्रीगेट करते हैं, उसको बोलते हैं क्वेरी डेटाबेस। ओके, एंड देन व्यू एंड एडिट ऑब्जर्वेशन का, और आपको उसको कुछ स्टाइल अलग से देना है कि उसका कलर अलग चेंज करना है, इम्प्रिटेशन अलग चलना है, वो उसमें एडिट में जाके कर सकते हैं। Digital terrain modeling. Okay, so for creating, like say after importing the point, I'm showing you one thing. One second, huh? The screen is visible to you. So this is our one of our project. So this is our starting point of the project. Okay, this is 6 lane. Okay, elevated bridge is there. So say these are the culverts. This if they अगर एग्जिस्टिंग होगा तो आपको सर्वर मार्क करके देगा, इसका इन्वर्ट लेवल भी देगा कि वो कितना आपके टॉप सर्फेस से कितना डाउन है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग चेंजेस क्या है वो आपको, कोई क्रॉस रोड देखो, कैनाल क्रॉस कर रहा है, कैनाल भी उसने मार्क किया है। ठीक है, और कोई आसपास देखो कि कोई दूसरा रोड जा रहा है, वो भी इसमें इलेक्ट्रिक पोल्स है, उसने वो भी मेंशन किया है। कोई बिल्डिंग्स आ रहा है तो उसने वो भी लिखा है, पक्का बिल्डिंग, मतलब एक सिंपल नोटिफिकेशन होता है अपना। ठीक है, तो आपका कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको वो भी इसको मार्क करके देगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स होते हैं जो, ठीक है। Now comes the digital terrain modeling. Like say, what is a terrain modeling? Basically after importing the point, for creating our alignment, we have to create our like the surface, existing surface. Okay, how we can create that we will see in the like we will do by the one of our example. Okay, like there is a elevations now. So on the basis of that, we have to create the surface run. Okay, and the elevations. We can export this thing in the land XML file. Okay. Now comes the main part, that is the horizontal geometry, that also called as a alignment. Okay, so there are lots of options in the civil 3D. I'll show you in a short time. Okay, that we can create alignment from the creation tool also. We can create alignment from objects. We can edit our alignment. We can edit our alignment style also. Okay, label style, like whether at every 20 meter we want some levels, or okay, we have should show at every 10 meter in the chainage. Okay, say if we have to labeling the alignment, say there is minor station, major station, and geometric points. What are geometric points? The curve details, like when we are traversing a highway, crossing a highway, then there are some curve points. Say we have to go right to left, then there will be some curve portion. These are the some. Okay, I'm showing one of the thing. अब आपको यहाँ से आना, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते ना। आपको यहाँ कर्व है, देखो यहाँ पे कर्व डिटेल है, हॉरिजॉन्टल कर्व डिटेल्स है, कर्व नंबर है, रेडियस कितना है, कर्व लेंथ कितना है, आपका ट्रांजिशन कितना है। आप व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन, यू ऑल हैव स्टडीड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व।
in highways. Okay, so these are some points that you have to recall. There are some codes also, say for horizontal IRC 38, IRC SP 23. There are vertical curves, IRC codes that we have to follow in India. Okay, deflection. What is the deflection angle? What is the design speed? What is the super elevation? These are the geometric for highway. Say for the horizontal geometry. There are some key points that we have to mention at every corner when we are providing our. Okay. Now come to the our PPT. After the after completing our horizontal, we will move over to our vertical design. Okay, say vertical design after creating the vertical. Say when you have studied in your UG or PG, there are some vertical sag and summit curve, crest and the sag valley curve. These are there, na? That we with the help of sag and vertical we will create our vertical geometry. Okay. After that, we have to show our profile bands. Say what are the profile bands? I'll show you in a second. Okay, I'll show you. And what are the grade and second curves? Like say we have to provide the details that as per we have provided in the highway alignment part. And the same thing that we what type of curve radius is there? Okay, what is the K value? This is and that creating design profile. If we have to change some editing in it, we can adding design profile bands. Okay, how to add the design profile band? Okay, I'll show you the what is the our bands. Okay, I'll show you. See, this is the horizontal part when you are choosing. Say, you clicking on it. So, sorry to disturb you. Yes. Actually, students are complaining to go a little slow and loud in the chat box. Please see the Okay. query. Actually, I'm not able to. If someone have any doubt, like can because I'm sharing my screen, so Ah, there is no pop-up. so they are saying to just go a little slow and loud. Okay. Okay. से सबसे पहले मैं अब रिपीट कर देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या होता है कि हमें सबसे पहले आपके पास सर्वेयर होता है जो जनरली डिजाइन इंजीनियर नहीं होता है। जो एक्चुअली क्या होता है उसमें आप व्हीकल का है नेटवर्क सर्वे व्हीकल्स जिससे आप अपना टोपो सर्वे करते हैं। ठीक है। आफ्टर टोपो सर्वे करने के बाद वो आपको एक सर्वे शीट बना के देगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे देगा। उसमें आपका डिजाइन पार्ट नहीं होगा जो आपने डिजाइन किया है। आपका जो मैंने थोड़ा वो कर रखा है ये जैसे इलेक्ट्रिक पोल है ये सब आपको उसमें करके देगा अपनी सर्विस शीट में। ओके। तो आफ्टर दैट आपको सबसे पहले क्या बनाना है अपना जो आपको वो पॉइंट्स देगा उसको अपनी सर्वे यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगर मैं इसमें अगर है मेरा मैं आपको शो कर देता हूँ। तो इसमें पॉइंट्स नहीं है। यहाँ पे मेरा अलाइनमेंट है। ठीक है। जो होगा यहाँ पे आपको यहाँ प्लस पॉइंट दिखता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है उसमें क्या है अपने सबसे पहले अपने आपको अपने पॉइंट्स इंपोर्ट करना है क्योंकि हमें उस सर्फेस का जो हमारा जो जितने भी हमको बनाना है अपना हाईवे उसमें वो ग्राउंड होना होगा तभी तो हम उसका एलिवेशन निकाल पाएंगे ना। हम एक्स वाई निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट का जो एक्स वाई सिस्टम है बट हम उसको एलिवेशन के लिए वी नीड सम सरफेस ना। तो फॉर क्रिएटिंग द सरफेस वी हैव टू इंपोर्ट आवर सर्वे पॉइंट्स दैट वी विल बी गिवन बाय द सर्वे। That's not a part of highway design engineer. When you are working in any company firm, consulting firm, then they will provide you the survey points and the topo sheet. Okay. After seeing the topo sheet, you have to make you can make your alignment. First, you can make your surface also. If you want to make it after geometry work, you can make it. There is no compulsion कि आपको पहले ही surface बनाना है। ठीक है। तो आप होल्डर करने के बाद आपको सरफेस बनाना होगा। ठीक है। जब आप सरफेस बना लेंगे उसमें क्या सरफेस बनाने से क्या होगा ना कि आपके पास आपका हाईवे अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है कितना कहाँ पे शिफ्ट करना है। देखो अगर मान लो 2 लेन होगा तो आपको बस इतना ही होगा। अगर आपको 4 लेन करना है तो आपको एक्सटेंड करना है। उसके साथ अब आपको कर्व देखना पड़ेगा कि आपका कर्व कहाँ जा रहा है। ठीक है। वो आपका ये आपको याद रखना है कि जो आपका कर्व होगा ना वो आपके राइट आपने पढ़ा होगा RW राइट ऑफ वे। तो उसके विद इन रहना चाहिए। उसके विद इन आपके ड्रेन भी आनी चाहिए। अगर कोई यहाँ पे कोई ड्रेन है अगर 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे है तो ड्रेन होगा ही होगा बिल्ड अप एरिया में। ठीक है। तो आपको ये सब इलेक्ट्रिक पोल आपके राइट ऑफ वे के अंदर ही आने चाहिए सब आपको देखना होगा। ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब आपको कहीं भी कर्व लगा देना है लाइक सिंपली जस्ट ड्रॉ एंड पुट से वी हैव टू ड्रॉ ए कर्व ऑफ 1000 मीटर नो लाइक दैट। ओके। आपको थोड़ा देखना होगा।
ठीक है। और उसके बाद आपको सबसे पहले सरफेस बना लेना, अगर आप सरफेस हॉरिजॉन्टल के बाद बनाना चाहते हैं तो अगर वो नहीं करना है तो आप उसके पहले बना लेना, जैसे एज पर यूज कन्वीनियंट जो आपको करना है। उसके बाद सरफेस बनाने के बाद ही जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोफाइल व्यू, यहाँ पर क्रिएट प्रोफाइल व्यू, यहाँ पे आप मल्टीपल्स भी बना सकते हो। ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करके आप आपके पास एक टूल खुल जाएगा यहाँ पे, क्रिएशन टूल, उससे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने यही बताया, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, दिस सिविल 3D और या ऑटोकैड? सिविल 3D, AutoCAD like for drafting purpose only. Okay, projects for the drafting purpose. There you cannot draw design in the AutoCAD. सर सिविल 3D वी कैन MX रोड नहीं है ना सर? No sir, MX is absolute MX का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, ओपन रोड। MX रोड और ओपन रोड सिमिलर है सर दोनों? नहीं, थोड़ा चेंजेस है, अगर उनको चेंज नहीं करना होता तो सॉफ्टवेयर का नाम चेंज नहीं कर दे। वो थोड़ा सिमिलर है सिविल 3D के, आप 50% सिमिलर मान सकते हो, पर सिविल 3D बेसिक सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले यही आया था। हेलो। या प्लीज। जी सर, मैं एक्चुअली सिविल 3D, MX रोड और मतलब इन दोनों सॉफ्टवेयर में बेसिकली डिफरेंस क्या है जो हाईवे डिज़ाइन में यूजेबल हो? सिविल 3D में देखो, मैंने एमएक्स पे एक दो प्रोजेक्ट पे ही काम किया है। ओके, आई हैव वर्क ऑन वन और टू प्रोजेक्ट ऑन एमएक्स, but MX is like it's a static software. When you are say when for a project, you have design your alignment, you have design your after doing alignment, you have design your vertical also. Okay, that is a static thing. That is a like say it's fixed. When you are changing in anything in the horizontal curve on the horizontal alignment, it will not reflect in your vertical profile. That is a static meaning. But civil 3D is dynamic. Whenever any change in the alignment part, it will automatically change in the all the vertical or surface also. Is there anyone who have any doubt regarding this? सर सिविल 3D में CSV फाइल कर सकते हैं सर? CSV सर्वे डाटा only CSV ही जाएगा, एक्सेल नहीं जाएगा। only CSV file will be imported in the civil 3D, not Excel file. ओके सर। सर हाईवे डिजाइन में जाने के लिए एमटेक नेसेसरी है क्या सर? इम्पोर्टेंट एमटेक इज नेसेसरी? ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ, मतलब लाइक who told you कि like you have to do MTech for design for in the heavy design? Who told you? No, sir, actually some companies are desirable. MTech is desirable. They in That's a company, that's a company priority, not like that. There is no compulsion from any government authority like people from BTech cannot design the highway. There is no compulsion from that side. yeah, sir. If sir sir for highway design, civil 3D and MX road is necessary, sir. Yeah, Is it? you have to some little knowledge, at least you have some basic knowledge, because Okay. no one is there in the highway in the industry in any who teach you. Basically the thing is that. Sir. Okay. Sir, in civil 3D, we will design the thickness of pavement, or what we simply draft the topography? Only the geometric part. You have studied in BTech, na? What is the design speed? What is the horizontal curve? What is the vertical curve? You have studied in your UG. Everyone has studied the. Yes, sir. That part we are designing in the civil 3D. For IIT, for the payment design, we are using a software. There is software from IIT Kharagpur that is called as IIT Pave. That is free of cost. Okay, when we'll do our class, I'll share with you. Okay. For payment design, we are using the IIT Pave only. For the flexible, for rigid, you have studied the Westergaard theory. Some equations are there. On the basis of that, IIT Kharagpur professor developed an Excel sheet. Okay, on the basis of that, actually, we are designing concrete payment. Okay, third option is also there. That is called as like semi-rigid. So we have to provide sub-base and sub-base are the semi-treated, and after that we can provide our flexible payment. That is a DBM or bearing course. Okay.
Is there anyone? सर एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन भी सिविल 3D में ही डिजाइन होगा ना? With geometry, any work from related to geometry that will be designed in civil 3D. ओके ओके ओके। It's nothing like you can. Yes, yes, please ask. सर जब अपन डिजाइन करते तब IRC यूज करते? Yeah, in India you have to follow the IRC codes. सब Basically, there are मैन्युअली या सॉफ्टवेयर सिविल थ्योरी में ही इंक्लूड है? basically आपको वहां से like say in the IRC codes you have to check your design speed because say NH it is the minimum 80 and the maximum 100 kilometer per hour. Okay, 100. Yes. and the for the Yes. PWD it is a 40 or 60 or 80. And 80. there are some curve radius, 100 curve radius also there that the minimum at 30 meter radius you have to put that's assign that speed only. These are some points that you have to taken from the IRC. तो सिविल 3D यूज करते टाइम वो IRC साथ में रखना पड़ेगा? Yeah, actually two or three tables are there in the IRC course, horizontal curve and vertical curve, that you simply put on the desktop. You okay? Okay. Sir, let's continue with the PPDA. Otherwise, it will not get complete. Okay. The screen is visible. PPT is visible. Yes, sir. Yes, It is sir. visible. Yes, sir. Okay. Now come to the super elevation. That is the main part. Okay. That is the main part. That is the super elevation. This is the toughest, toughest task over the highway design. Okay, that is super elevation. You have studied now when there is a straight portion, like say road. When you have a straight portion, okay, the your road is at the upper edge at the center line. Okay, there is a called a normal camber. When you're like crossing a curve area in highway part, then you have seen that say when you go from left to right, there is a left portion, left road is left road edge is at a upper gradient than the right side. It is called a super elevation. Okay, you have studied in UZ. Okay, it is the toughest like task. Then the assembly parts are there. What is the assembly? I'll show you 1 second. Okay. One second, I'm opening. One second, it will take some 1 or 2 minutes to open the file. Okay. See, this is assembly. That is assembly. See, this is your two lane project. Okay. So this is your left hand side. That have highlighted. Okay.
this is the assembly. What is the assembly? Say, but you have 7 meter of carriageway. When there is shoulder, say if drainage are there, these are the should be in the assembly part. Okay, this is assembly. You can have say multiple assembly in a single project. You can have. Okay, this is assembly. After creating the assembly, we have to create our corridor. What is the corridor? So all the things that we have done, like say whether it is a drainage, it should be within the corridor. Okay. So after that, on the basis of corridor, we have to show where is our cut and a fill slope. Okay. These are done in the corridor part only. Okay. Then section. I'll show you once. I'll show you. What is the road cross section? These are our road cross section. Say at every 20 meter, I have created our in a transfer section. Say this is our road, a highway, projected road. This is the existing ground. Okay, you click on that is the existing ground. Okay, this is our payment. On the basis of cross section, we have to create our cut and fill volume. Okay, these are it should be at every 20 meter, 25 meter. Okay, for creating road cross section, we have to make our sample lines. Sample line, say you have seen in the figure, these are transverse lines. Say at every 10 meter we have an 800 810. These are sample lines. Okay, and this is volume. What is the volume? Say for cutting and filling, what are the cutting and filling volume for at every 10 meter, 20 meter? We can calculate in the that is the kind of volume part. Okay, then report when we completing our design full design, we have to submit the horizontal report also, vertical report also, corridor report also, production. Say when we are creating our sheets now, we have to create at every A0 sheets, the side is the A0 or A1. We have to create our we have to show our highway projected highway plan and profile of 500 meter at each sheet. Okay, I'll show you 1 second. Okay, what are the sheets? I'll show you. This is the layout. Here you will when you design create your plan profile sheet, it should be here only. Okay, you will like only. Okay, after doing this part, this is the part of this is a part of your highway design. Okay, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मेरे से डाउट. सर मेरा स्टार्टिंग का छूट गया है. क्या स्टार्टिंग में जो सर पढ़ाए थे वो छूट गया था मतलब. क्या उसमें ये आपका शीट है इसमें मतलब आप मैंने रिपीट भी किया था. आप शोएब अख्तर कुछ आपका नाम था. ओके सर. मैंने रिपीट किया था कि सर्वे पॉइंट इंपोर्ट करने होते हैं. सबसे पहले टोपो शीट आएगी आपके पास. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. ओके सर, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा एक बार सर ग्रुप में. वो ऑपरेशन टीम कर देगी आपको बच्चों को कर देगी आपको. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपको सबसे पहले आपको सर्वे पॉइंट इंपोर्ट करने हैं. देन इंपोर्ट करने के बाद आपको सरफेस बनाना है अपना. ठीक है, देन आपको अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है. देन वर्टिकल करना है. ठीक है, वर्टिकल में उसमें क्या आपने कुछ कर दिया, आपको कुछ कर्व चेंज करना आप कर सकते हैं. आपको उसके लिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल बनाएंगे. अपन प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपना असेंबली बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद आप सुपर एलिवेशन देंगे. देन आप सैंपल लाइंस बनाएंगे. सैंपल लाइन क्यों बनाएंगे? आपको अपने क्रॉस सेक्शन चाहिए 10 मीटर पे. ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने बताया अभी तक. सर इसका मान लीजिए ऑटो कैड बनाने के लिए सबसे पहले इसका नक्शा लेना पड़ता होगा. हाँ, लाइसेंस ये ऑटो कैड नहीं है, सिविल 3D. ऑटो कैड वही 3D मतलब सर लेना पड़ेगा ना नक्शा.
तो लेना पड़ता है यार, बट यू कैन Okay. इफ यू आर doing as a practice, you can do it in a student version. You can get it from the AutoCAD website. Okay. So, Thank you, sir. Yep. so what are the basic things or parameters what we can check without using the software? I mean, by seeing the profile, plan and profile on the hard copy, I'll show you 1 second. I'm sharing my screen. without using the software. I mean, just या naked वही eye से क्या देख सकता हूँ? जी वही सर. वही वही बता रहा हूँ मैं, कुछ चेक्स होते हैं इसे आपको मैं जी दिखा। जी सर. सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको ये लगाना होगा कि आपका कन्वर्ट है कि नहीं है। ऐसे ही आपको हर सर जैसे, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरे पास सिर्फ हार्ड अरे कॉपी भाई से. हाँ हार्ड कॉपी से बता रहा हूँ तेरे को, मैं हार्ड कॉपी ओके से ही ओके बता ओके, रहा हूँ। सॉरी सर, सॉरी इंटरप्ट. जी सर. आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा, आपको हाफ किलोमीटर एक पेज मतलब एक शीट पे मिलेगा हाँ, डिजाइन एक हुआ पार्ट। 1 किलोमीटर फॉर अ ठीक सिंगल है, पेज, राइट सर. हाँ उसमें क्या होगा, आपको एक बॉक्स बना होगा ऐसे ही से, जब जी मेरा सर, यहाँ पे जी. कर्व है, मान लो मेरा अलाइनमेंट घूम रहा है, मतलब मूव हो रहा जी है, सर. टर्न हो रहा है, तो वहाँ पे जी आपको सर. एक कर्व रेडियस लगा होगा। से आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये है डिजाइन क्या उसमें लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कर्व डिटेल्स। जी राइट सर. कर्व नंबर है, रेडियस है, अगर आपको आप चेक कर सकते हैं कि आपका रेडियस मिनिमम रेडियस. रेडियस कम है या आपका जी कर्व सर. लेंथ कितना है, ये सब आपको ये 38 कोड है उसमें लिखा, उसके बेस पे आपको चेक करना होगा। ये ओके. आपका एक पैरामीटर हो गया। और ऐसे ही जी आप सर. वर्टिकल में आएंगे तो आपको ये नहीं है, वहां पे के वैल्यू होती है। जी सर, राइट सर. ठीक है, वो के वैल्यू आप उससे आप जान सकते हैं कि आपका हाईवे वर्टिकल प्रोफाइल मतलब वो करेक्ट है कि नहीं है। ये दो मेन ओके. पैरामीटर यहाँ पर भी आप जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मेरा कोई बॉक्स कलर है, वो मैंने वो भी मेंशन किया है, वो करना पड़ेगा आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। ओके सर, ऐसी कोई चेकलिस्ट है जो हम चेक कर, मतलब जो ये पैरामीटर्स हैं कि क्या क्या, जैसे कैम्बर चेक कर सकते हैं हम, हाँ राइट सर? सुपर एलिवेशन में आपको कर्व डिटेल में देगा, वो अलाइनमेंट वाले पार्ट में हाँ, वो आपको सुपर देगा। एलिवेशन में तो देखा. अब तो जैसे यहाँ पे अपने देखो, पास. हाँ यहाँ पे जी देखो सर. के वैल्यू लिखा हुआ है वर्टिकल में। राइट सर. राइट राइट. अब के वैल्यू आप सिविल थ्री में टेबल दिया, वहां से निकाल सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं हर कर्व को अपनी। हाँ, लेकिन मेरे पास सिविल 3D नहीं है और ना ही मुझे सिविल 3D अरे ऑपरेट करना आता है. आईआरसी कोड तो है ना आपके पास, लैपटॉप तो है ना, सिविल हाँ थ्री नहीं सर. है तो उसमें जी आप सर. चेक कर सकते हैं कि आपका कर्व रेडियस कितना है, वो एज पर आईआरसी कोड वो ठीक है कि नहीं है, बस वो ही चेक करना होगा। बिना सॉफ्टवेयर आप कैसे क्या चेक करोगे बताओ आप। हाँ, वही 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 सर. और यहाँ पे सबसे पहले आपको के वैल्यू देखनी है, अगर आपकी के ओके. वैल्यू करेक्ट है तो आपका लेंथ भी सही होगा, कर्व का सब ठीक होगा। और वहां पे आपको कर्व अच्छा. डिटेल होगा, उसमें देखना होगा कि आपका ओरिजिनल रेडियस कितना है, डिजाइन स्पीड कितनी ली है, उस डिजाइन स्पीड पे आपका जो सुपरलेशन दिया है वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ओके. आपको ये चीज देखना होगा। यहाँ पे उसने जी देखो जी. मेंशन किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे वाले से, इसमें तो नहीं है प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें देखो यहाँ मेंशन कर रखा है हर कर्व डिटेल पे, देखो सुपर हाँ हाँ, ये एलिवेशन कब डिटेल मेंशन डिजाइन रहती है, स्पीड, बिल्कुल सही सर. जैसे जैसे ही आपका डिजाइन स्पीड 80 हुआ तो आपका सुपरलेशन भी ज्यादा हो गया। जी ठीक सर, है, राइट सर. डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, टेंजेंट लेंथ कितनी है, ट्रांजिशन लेंथ कितनी है, कर्व लेंथ, ट्रांजिशन सब करते हैं. करना, सब आपको करना पड़ेगा। जी जी सर. और किसी को डाउट है? Yes, sir. Are we Yeah. gonna do this like everything from start to the end? Like कोई सर्वे डेटा लेके हम करने वाले हैं सिविल मैं 3D वही भी? करूंगा, बिना आपको टूल्स बता के मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जी आपको जी मैं वैसे ही वही बताऊंगा ताकि आप कुछ लर्न कर सकें, वरना आप जी. वैसे तो ऑटोकैड की साइट पे भी ब्लैंक शीट मिल जाएगी, वहां भी आप पढ़ सकते हैं कैसे यूज करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, obviously fundamentals तो चाहिए होगा सर. तो थैंक यू. और कोई डाउट है? ये अपना डिजाइन सर हाईवे बेसिक में, MX हाँ इजी है या सिविल 3D इजी है सर? यार वो आपके यूजर पे डिपेंड करता है। मुझे वो सिविल थ्री ही यूज करना इजी लगता है तो मैं सिविल थ्री पे वर्क कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सॉफ्टवेयर आपको कंपनी को आपके आउटपुट से मतलब है। एवरी कंपनी वन आउटपुट। इफ यू आर वर्किंग इन एमएक्स इट्स वेल एंड गुड, इफ यू आर वर्किंग सिविल थ्री इट्स आल्सो गुड। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आपको एमएक्स वाले को सैलरी ज्यादा मिलेगा या फिर सिविल थ्री वाले, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके सर. The European countries in which software is used, OpenWorld or सिविल थ्री, this सिविल Civil 3D? थ्री 90% like say UK based companies are WSP, they are using Civil 3D. They are working on MX also.
but they are more focused on the civil 3D. Okay, Remits and Civil 3D. No, see civil Revit for the structure part. We are not a structure engineer. We are working in the highway part only. हेलो Yes, Mr. Sagar, please ask. सर ये फ्रेशर के लिए क्या स्कोप है जैसे आप थोड़ा इलोबरेट कर पाए तो अच्छा होगा सर। देखो स्कोप ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर अभी भी कोई ये कह रहा है कि हाईवे में जॉब नहीं है तो फिर कभी इसको जॉब नहीं मिल सकती हाईवे में, क्योंकि इससे ज्यादा इतने फास्ट मतलब हाईवे के प्रोजेक्ट कभी निकले नहीं है। तो जॉब्स है बट आपको सर्च करना होगा। हाँ ये हो सकता है कि मतलब लाइक आपको स्टार्टिंग में अच्छी कंपनी ना मिले, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बट वो स्टार्टिंग फेस होगा। उसके बाद आपको वो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना कि आपको हर प्रोडक्ट में नई नई डिफिकल्टीज आएंगी, तो आपको वो वर्कआउट करने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। सर एक क्वेश्चन पूछना था। या प्लीज रजनीश। सर अगर मुझे जैसे मास्टर्स करनी है तो उसके लिए सर मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने चाहिए? मास्टर्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं आना चाहिए आपको। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में करना था सर मास्टर्स, तो करिए आप, उसमें कोई दिक्कत वो मास्टर्स लाइक उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं आना चाहिए। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर ये इंटरसेक्शंस में ट्रैफिक जो लाइट्स होती हैं उसका भी सिविल 3D में कवर हो जाता है? लाइट्स नहीं यार, इंटरसेक्शन के लिए आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो अपने वो ट्रैफिक वाला पोर्शन है, वो हाईवे का पोर्शन नहीं है। इंटरसेक्शन डिजाइन मतलब से बेसिकली इंटरसेक्शन के टू रोटरी वगैरह यही ना? यस सर, यस सर। और उसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ये था हमारा हाईवे वाला पोर्शन, ठीक है। उसमें उसके अलावा भी सिविल 3D में होता है, बट वो अगर वो कोई मतलब हाईवे डिजाइन इंजीनियर के लिए इतना यूजफुल नहीं है, बट आपको फिर भी गाइड कर देता हूँ थोड़ा उसमें। So, how to check vertical curve and horizontal curves? Can you repeat the question? How to check vertical and horizontal curves, whether they are in permissible limit or not? I have already discussed it again. Yeah, sir, but I didn't get those. Screen visible to you? Yeah, sir. So this is the horizontal part, the horizontal curve. These are, you have to check curve radius, curve length, transition length, and that's design speed and super elevation. These are the main things for the horizontal element. But at every single point you have to provide it, okay? When there is a curve, these are the some checkpoints. And for the vertical, you can see it here. Now, how would I know whether they are written correct or not? Actually, to be very honest, let me tell you one more thing, that I'm working as a consultant and contractor submits the plan and profile. You know that very well, right? Yeah, okay. So I'm just asking about that, whether is he submitting in a correct manner or not. You have to check the IRC code, na, for that, whether they are in the correct position or not. That's what I'm asking for. Do you have any checklist that these are the parameters? You have to make your own checklist. Thank you, sir. But I request you from the bottom of my heart, sir, if you can provide me, sir, that would be really help me a lot, sir. I don't have, but just for say for highway alignment, I just check out the curve rail. What is the curve radius? Okay, what is the super elevation? What is the design speed? These are the main for the highway. Okay. Yeah, design speed is mentioned in the contract agreement as well. No. It's not about the agreement. Say there are some points where you cannot go beyond 60 km/h. This is not mentioned in the agreement, na? Yeah, that is not mentioned in the agreement. Right.
Yeah, that um, the minimum side distance over side distance, that was right. Yes, we are not mentioning in the. Right. Okay, sir. Then what would you suggest to work in design department or in the execution only? यार मुझे तो एग्जीक्यूशन पे जाना अच्छा नहीं लगता है पर्सनली. मुझे भी नहीं अच्छा लगता सर, इसीलिए मैं कंसल्टेंसी में जॉब कर रहा हूँ. मुझे कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि लेकिन स्कोप ज्यादा दिखता नहीं है सर कंसल्टेंसी में, एग्जीक्यूशन में. बट आपको लाइक थोड़ा स्टे करना पड़ेगा आफ्टर 2 or 3 years. मतलब आपको 2 अच्छा years ग्रुप नहीं मिल सर, जाए. आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3.8, 3 years 8 months. Okay, where are you working now? I'm working with ICT. ICT Delhi. Yeah, right. In the highway or? In the highway department only, sir. And I can't tell you the project details. No, I'll find out. तो मतलब एक सर्टेन पॉइंट के बाद तो हाईवे में भी सर मतलब एग्जीक्यूशन में भी ठीक है. वो आप पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यार. मतलब अच्छा, और अगर सर अभी से मैं स्टार्ट करता हूँ अगर डिजाइनिंग में, हालांकि साइट का तो मतलब बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो आ गया है मेरे पास, लेकिन अगर अभी से डिजाइनिंग स्टार्ट करता हूँ, मुझे क्योंकि कुछ भी नॉलेज नहीं है डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर का. सॉफ्टवेयर सीखने में 1-2 साल, मतलब प्रॉपर सीखने में मतलब 1-2 प्रोजेक्ट पे सिंगल हैंडली काम करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आता. हाँ वही मैं सोचता हूँ सर कि 2 साल इधर भी दूँ और फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे मतलब. मेरा कलीग है अमित पांडे, आप उससे पूछ सकते हैं. ओके वो अमित is there. एग्जीक्यूशन से आए क्या? नहीं, वो सॉफ्टवेयर में ही है. अमित पांडे इज देयर. ओके, हेलो सर, अमित सर. यार man, is there any doubt till now? Okay. Now come to the some introduction part. Okay. Okay, sir. There are some parcel things there in the civil 3D. What is the parcel? Like say if we have to create a like say a township for this for that thing, we need the parcel. Okay. I'll show you one example. One second, huh? One second, I'm opening the file. Okay. Screen visible to you? Yes, sir. Say we have to create a we have to create a city master plan. Where the roads, we have to take the plots property. For that we are using the parcel thing. Okay, there is a parcel option. We can create parcel from the object also. These roads, these are the roads. The green one are the roads. These are designed. Say these are alignments. These are designed with the help of not the alignment part for the builder, the create right of way. Okay. This is the basically the use of the parcel, but it's not for highway design part, but it's for the say the person who are using in the infrastructure work. Okay. Then the grading is there. Grading ये आपके काम का है. इसमें क्या होगा, आपको फीचर लाइंस बेसिकली यूज होती हैं. एक तो होता है 3D पॉलीलाइन. 3D पॉलीलाइन में क्या होता है कि आपके पास एलिवेशन भी होता है, XYZ भी होता है, XY होता है. तो फीचर लाइन में क्या होता है ना, वहाँ पे आपको मतलब
से आपको मैं बोल दूं कि ग्रेड चेंज करना है कहीं बार एक 10 मीटर के इंटरवल पे, तो आपको पिच लेन इजीली हो जाता है। 3D पोल में थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, वो ये आपका ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग ऑफ पिच लेंस। ओके, देन आपका एक, आपने देखा होगा कि आपका पाइप नेटवर्क होगा, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो आपका, जो आजकल दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, वो घर पे वो पाइप लाइन्स आ रही हैं इन केस इन रिप्लेस ऑफ सिलेंडर इन द किचन। तो उसके लिए पाइप नेटवर्क भी डिजाइन कर सकते हैं, बड़े आपके हाईवे इंजीनियर का कोई इसमें वो नहीं है, बट इसका डिजाइन अलग होता है। बट एक उसका पार्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो मैंने आपको डिस्कस किया। उसमें आप प्रेशर पाइप बनानी होती है कि आपको मतलब कि आपको पाइप नेटवर्क किसके लिए बनाना है, कि आपको वाटर पाइपलाइन के लिए बनाना है या फिर आपको गैस पाइपलाइन के लिए बनाना है, तो उसके बेस पे आपको डिजाइन करना होता है। ठीक है, उसमें आप उसको प्रेशर पाइप, आपको प्रेशर पाइप में एक अच्छी चीज होगी, उसमें आपको ग्रेडियंट की दिक्कत नहीं होती है कि आपको ग्रेड पे देना है, उसमें से ऐसा कोई इनपुट नहीं होता है। वो ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, तो वो कहीं भी चला जाएगा। ठीक है, जो आपको जहाँ पे आउटलेट होगा वहां से निकल पाइप वहां से गैस को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पाइप नेटवर्क का था। मेरा यहीं तक था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। तो वो एक इंफ्रा वर्क के लिए है, हाईवे डिजाइन में उसका कोई यूज नहीं है, पर वो एक उसका था, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एटलीस्ट याद तो होना चाहिए। या रोहित, हेलो। जी सर। तो मैंने रोहित, यू हैव रेज योर हैंड प्लीज। किसको डाउट है तो पूछ सकता है। या मोहम्मद, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? नोट, sir, is grading synonymous with benching done for the critical structure? You can done it like say for the grading as per highway engineer we are using, say if there is some embankment part na, or say you have seen in embankment there is some side slope. For designing the side slope we are using the grading for highway purpose. You can do more thing with that. Say we can calculate the volume of any water tanks. If there is some tank in there in the house, we can calculate the volume also. But this is not for you, but for our we are making only the side slope parameter. Yeah, Viraj. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है वो। Hello, good evening, sir. Yeah, Viraj. Sir, what about the assembly part? Can you going to tell something about assembly? अरे बेसिकली आपका असेंबली क्या होता है कि आपको मान लो कि आपका से 2 लेन है, उस पर 2 लेन पे आपको मीडियन देना है या फिर आपको शोल्डर देना है, कितना देना है, और आपको से स्लोप होता है, तो वो सब असेंबली बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, अगर आप असेंबली में देंगे तो वही आपका फिर डिजाइन में भी जाएगा कॉरिडोर में। अगर आप असेंबली में नहीं देंगे तो आप उसको कॉरिडोर में उसका उससे आपका उसका वॉल्यूम भी नहीं निकाल सकते कि कितना कटिंग है, कितना फीलिंग आएगा, वो भी नहीं निकाल सकते। असेंबली वो है आपका। Okay. No, assembly. What is assembly? I know, but assembly के assembly में जो end conditions देते हैं, डे लाइट, नाइट लाइट कुछ रहता है उसमें, डिच बनाते हैं हम लोग साइड में, तो वो असेंबली में आपको
तो सर आपको असेंबली में देना होगा, लाइक अगर आप असेंबली में यूज करेंगे ना अपना ड्रेन वगैरह कुछ भी है, तो आप अगर आप मतलब कि अगर आपका ड्रेन है, आपका मीडियन है, या फिर आपका कर्व्स भी आ रहे हैं, अगर अगर आप उन्हें देंगे तो आप उसका डिजाइन आगे फर्दर कैसे करेंगे आप? आप अगर Can you मीडियन show दे us रहे हैं आप, something, sir, about this? आपके वापस सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स में कभी यूज किया होगा क्या आपने? जस्ट टू नो. मैंने ऑलरेडी शेयर किया है अपने प्रोजेक्ट का एक। ये असेंबली है, ये आपका लेफ्ट लेन है, ये वाला ये राइट लेन है, ठीक है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका डे लाइट स्लोप है, ठीक है, ये आपका असेंबली है। Okay, so it is a simple assembly. ये बेसिक है, Basic assembly. Okay, okay, हाँ. बट आप बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप असेंबली पे जाएंगे यहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास आ जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे सब कुछ कर दे। यहाँ पे आपका टूल पैलेट खोल के आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। वो लेन कैसे ऐड करना है, ठीक है, आपको शोल्डर कैसे देने हैं, मीडियन कैसे प्रोवाइड करना है, सब आ जाएगा आपके पास ये। Okay, okay. Sir, can you share this layout of Civil 3D? Share but in the screen na? No, sir, the Civil, the layout you are showing in the Civil 3D. Can you share that? Design file? No, I can share you. Okay. It's a project, brother. It's a, sir, live project? Yeah, it's a project that we have done. A project. Okay, sir. Okay. Is there anything? हेलो। या अजय सर जब आपने शुरू किया, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वो कुछ क्या क्या यूज हुआ, जैसे कौन से आईआरसी कोड यूज हुए या कौन सा आईएस कोड यूज हुआ, कुछ नोट से कुछ ऐसा कुछ समरी निकला है क्या? अरे देख, सबसे पहले बेसिक कोड है हमारा IRC38 हॉरिजॉन्टल का, और हॉरिजॉन्टल का, यस। ये तो हर हाईवे में यूज होना ही होना है, ठीक है। यस सर। तो बाकी अगर आप 2 लेन के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको IRC73 यूज करना पड़ेगा, और आप 4 लेन कर रहे हैं तो IRC84 यूज करना पड़ेगा, अगर आप 6 लेन के लिए कर रहे हैं तो 89 है शायद, वो यूज करना पड़ेगा। ओके, 1 सेकंड ना, एक सेकंड, 1 सेकंड होल्ड, 1 सेकंड। हेलो,
हेलो हेलो। अजय, कोई डाउट है आपको? वही सर, एक्चुअली अभी मेरा एमई हो गया है ट्रांसपोर्टेशन में, तो मैं अभी एक्चुअली वो कौन सा पोर्शन स्टडी करे और वो सिविल थ्योरी में यूज हो पाए, वही देख रहा था। तो कुछ आपने सबसे नोट्स पहले निकाले हैं तो फिर आप शेयर कर सकते हैं कौन सा नोट्स? क्या? मीन्स कौन सा आईआरसी यहाँ यूज होता है वहाँ, जो जब आपने कोर्स शुरू अभी होगा उसमें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, उसमें टेंशन मत लो। हाँ। थैंक यू सर। हेलो अमित। हेलो। हेलो। हेलो अमित, कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। हेलो। क्या हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आ रही है। ये अमित है, ये अमित मेरा कोलिग था पहले कंपनी में। तो जैसे आपने ये पूछा कि अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आप जैसे डिजाइन करते हो तो फर्स्ट में जो है वो टोपो सीट आते हैं, मतलब टोपोग्राफी सर्वे होते हैं। तो टोपोग्राफी सर्वे से क्या होता है, अपने को सेंटर लाइन मिल जाते हैं और लेबल मिल जाते हैं। हाँ, फिर ग्राउंड उसके पॉइंट भी बाद मिल जाते हैं। हाँ 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 वो मतलब सिविल 3D में आप जाओगे तो ENZ होते हैं, E फॉर स्टिंग नॉर्थिंग और Z फॉर एलिवेशन होते हैं। तो इसके हेल्प से जो टोपो सीट मतलब टोपो सर्वे जो कराते हैं उसके वो मतलब डाटा को इनपुट मतलब CSV फाइल एक बनाते हैं, फिर उसके बाद उसे सिविल 3D में डालते हैं। सिविल 3D में मतलब जैसे डालो वो डिटेल फाइल में डाल भी देते हैं और हाँ आपको बेसिकली सरफेस बनाना इजी हाँ हो जाता है तो पॉइंट से। वो इजिली आप वहां से सरफेस बना सकते हो। फॉर मेकिंग अ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वी आर बेसिकली यूजिंग अ IRC 739080 टेबल नंबर 17। वहां से क्या है कि अगर अपन को अगर 100 का डिजाइन स्पीड अगर लेना है और सपोज दैट इफ यू आर गिविंग द रेडियस ऑफ द 400 देन वी हैव टू गिव द ट्रांजिशन ऑफ द 115। मतलब हमेशा क्या करते हैं कि मतलब सिंपल कर मतलब बनाने का ट्राई करते हैं और इससे मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बनाते हैं। और फिर वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है कि अपने को मतलब जो टोपो सीट से जो अपने को लेबल जो मिला है उससे क्या होता है एग्जिस्टिंग लेबल का मतलब वो ड्रॉ कर देते हैं। फिर उसके बाद आप FRL कर लो। FRL के लिए IRC SP 23 में जैसे क्या होता है कि ग्रेडियंट आप क्या दे रहे हो, N1 और N2 क्या ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग आप कर्व लेंथ मतलब ये डिसाइड करते हो, मतलब कैलकुलेट होता है हाँ जो आपने तो बेसिकली जब हम फॉर्मूला क्रॉस में चेक पढ़ा करेंगे तो होगा। वहाँ पे हम ए वैल्यू या फिर के वैल्यू यूज करते हैं। अब हाँ डिजाइन ए अगर क्रॉस वैल्यू। चेक करना होता है किसी हाँ को तो के वैल्यू, कोई ए वैल्यू भी बोल देता है उसको, कोई के हाँ भी बोल देता है। हाँ ये वैल्यू भी बोल देते हैं उसे। जैसे अपना जैसे होता है 100 पे अगर डिजाइन अगर कर रहे हो तो मिनिमम उसका मतलब कर्व लेंथ जो होता है वो अपने को 60 रखने पड़ते हैं, उससे नीचे आप हाँ नहीं जा सकते हो। और फिर उसके वो बाद जब अपने वर्टिकल अगर एरर सिविल थ्री हाँ डी में अच्छी चीज वो एरर दिखा देगा वहाँ पे। हाँ एरर दिखा देगा। अगर आप डिजाइन क्राइटेरिया का चेक पॉइंट अगर टिक किए हो तो वो एरर दिखा देंगे। मतलब क्या है कि वहां पे आपको या तो कर्व लेंथ को इंक्रीज करना होगा। मतलब जब वर्टिकल अलाइनमेंट जब डिजाइन करते हैं ना तो उस टाइम अपने को देखना पड़ता है कि SSD और SSD होते हैं और ISD होते हैं। अगर आप 4 लेन के लिए अगर कर रहे हो तो SSD पे आपको डिजाइन करना पड़ता है, तो उससे 2 लेन का आपका आपको और एचडी पे करना पड़ेगा, आईएसडी हाँ पे। ISD पे करना पड़ता है आपको। फिर उसके बाद एक अभी क्वेश्चन किसी ने रेस किया था कि असेंबली पार्ट जो बनाते हैं, तो असेंबली पार्ट में क्या होता है कि जब आप असेंबली जब डिजाइन करते हो ना तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपके कैसे TCS है, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप वहाँ पे असेंबली में जो जाते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वो आपको चूज करने पड़ते हैं। हेलो। हाँ अमित, मैं यही हूँ। हाँ भैया। और किसी को डाउट है कुछ? एनी अदर कुछ? सर ये जियोनी फाइल इनपुट नहीं कर नहीं, सकते वो ना सर MX इसके चलेगा, अंदर, वो MX में ही चलेगी। सिर्फ और MX में जैसे ही? MX का फोल्डर फॉर्मेट है DXF शायद, हमारा सिविल 3D का है DWG। हाँ DWG आप कर ओके। सकते हो। जैसे हम लोग MX के अंदर 2 लेन के लिए टेम्पलेट ऑलरेडी रेडी रहता है ना सर? तो असेंबली सर आपको आप एक बार सारी असेंबली आपको 2 लेन के लिए बनानी है, 4 लेन के लिए बनानी है, आप एक बार बना के आपका कोई वन फॉर टाइम एग्जांपल अभी MX वन के टाइम अंदर टास्क है वो आपका।
नहीं नहीं, अभी एमएक्स के अंदर हम लोग 2 लेन बनाना होता हम्म तो वहां पे कैरेज व्हीकल लोडेड रहता है टेम्पलेट, तो हम्म सर वैसा सर भी सर सिविल 3D कस्टम, में भी होता है। हाँ सिविल 3D में भी एक कस्टम असेंबली बने हुए होते हैं, उसमें आप जाकर आप जो आपके पेमेंट के विड्थ हुए या ग्रेडियंट हुए सारे कुछ आप चेंज कर सकते हो, वो कस्टम के होते ओके, हैं उससे बेटर है, उसमें। इतना ओके चेंज करोगे उससे बेटर, इतने में तो बन हाँ जाती है वो। उससे बेटर है कि आप मतलब अपने ऑप्शन जो मतलब जैसा आपको चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हो आप। और एक सर एमएक्स रोड के अंदर, सर एमएक्स सॉफ्टवेयर के अंदर हम इनपुट मेथड यूज करके भी हम लोग कोडिंग करके यूज करके भी डिजाइन कर सकते हैं ना? यहाँ भी कर सकते हैं सर, बट यहाँ यहाँ पे पे हम कर सकते हैं सर? यहाँ हम जनरली सुपर एलिवेशन करते हैं ऐसा, क्योंकि अपने क्या होता है 2 लेन हाईवे में कभी भी ट्रांजिशन मिल नहीं पाता है, तो हाँ वहाँ पे हम बैक एंड फाइल पे जाके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक मतलब आप एक्सेल में कैलकुलेट कर लो अपना सुपर एलिवेशन, उसके बेस पे ओके, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट कर सकते हैं सर? हाँ हाँ कर जैसे सकते हम लोग इनपुट इनपुट मेथड से हम लोग एमएक्स के अंदर करते हैं ना सर? सर। मैंने जैसे एमएक्स कि पे विराट एक दो और प्रोजेक्ट पे काम किया है, इतना काम नहीं किया एमएक्स पे, क्योंकि मैं तो पिछले 4-5 साल से सिविल 3D पे ही कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि अभी इनपुट मेथड से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों विराट यूज करते हैं ना, विराट आप, प्रोग्राम लिख आपका जो के। क्विक अलाइनमेंट आता है उसमें, क्विक अलाइनमेंट करके। हाँ, क्विक अलाइनमेंट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम लोग कोड मिलता है ना, उसके लिए कोड आता है, हाँ जैसे सर, कि बट अब तो सर एमएक्स अब बंद ही कर दिया एमएक्स, बेंटली ने ओपन रोड आ गया है। सर हलगन अब यूज करते हैं। हाँ हाँ एमएक्स रोड ज्यादातर मतलब कंपनियां जो यूएस बेस्ड ये सब है उन्होंने भी बंद कर कर अब उसके जो लेटेस्ट वर्जन है ना ओपन रोड जी वो सर अब देखो, हो रहे हैं ज्यादातर, जी, अभी का डिमांड है। अभी क्या है ना, सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, लाइक एक नेवी स्टॉक भी करके है, पीडीएस अभी सर करके भी है। मुझे तो सर हाँ अभी नोवा पॉइंट, दो नोवा दो पॉइंट। दो 2 साल का एक्सपीरियंस है सर एमएक्स के अंदर। अभी मुझे यही कंफ्यूज है कि मैं सिविल 3D सीखूं या ओपन रोड सीखूं। सर आपको अभी क्या है, ओपन रोड भी मार्केट में नया नया है, तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो लाइक एक्सपर्ट हो, क्योंकि अभी नहीं है, नया है मार्केट में बेसिकली। हाँ, लाइक मार्केट में यूट्यूब पे तो। कुछ कंटेंट, हाँ कंटेंट पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे कंटेंट भी पड़े हुए, वहां से भी आप ओपन रोड सीख सकते हो। ओके ओके। उसके ऑफिस साइट बेंट पे मतलब है बट कुछ सर वही यूट्यूब है ना पे कि जहाँ डाउट बैठ आपको वही आएगा जब आप काम करने लगोगे किसी प्रोजेक्ट पे। जब काम वो करोगे तो ओके ओके। अगर अगर यूएस बेस्ड जैसे सिस्ट्रा ये सब हो गए, इनके यूएस बेस्ड जो कंपनी है ना इनमें ज्यादातर ओपन रोड ही यूज करते ओपन हैं। रोड आप डब्ल्यूएसपी में, वो हाँ सिमिलर है, क्योंकि एमएक्स में क्या पहले मॉडलिंग नहीं होती थी, सिविल 3D में हो जाती, तो अब उन्होंने भी ओपन रोड में शुरू कर दिया वो। अभी अटकिंस में सभी सर, अभी अटकिंस में भी एमएक्स रोड यूज कर रहे हैं फिलहाल तो सर अभी। एटकिंस में तो मेरे काफी नहीं फ्रेंड्स नहीं, हैं जो सब सिविल 3D पे ही वर्क यू करते हैं। यूके रीजन हो गए या स्वीडन रीजन हो गए, ये सब तो सारे सिविल 3D पे ही काम सिविल करते हैं, 3D पे। और यूएस, हाँ यूएस बेस्ड होंगे तो वो ओपन रोड पे करते हैं। ओके। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ऑस्ट्रेलिया में एक 12D करके सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुबई का है वो न्यूजीलैंड। हाँ वो 12D दुबई वो 12D मीना करके वो दुबई का है। अच्छा ये रही है। 12D एक सॉफ्टवेयर, हाँ 12D करके भी एक है, उसमें जैकॉब्स में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया रीजन के लिए 12D पे। 12D होता था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो पता है कि 12D यूज होते हैं वहाँ ये भी पे। ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है 12D। नहीं नो नो नहीं, नो, अलग कंपनी है यार वो। दैट इज अ डिफरेंट। अब एक कंपनी दो चीज कैसे निकालेगी, मतलब काम जब सेम हो रहा है तो। ओके। और अभी जैसे आप स्वीडन के लिए अगर काम अगर करते हो तो उसमें एक नोवा पॉइंट ये सब आया है। हाँ नोवा नोवा पॉइंट भी है, पीडीएस भी है एक। पीडीएस तो साइनेज मार्किंग के लिए जैसे हो पीडीएस। वो सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं ये है कि। मेनली अगर आप ग्लोबल कंपनी में जब काम करते हो तो ये ज्यादा मतलब सॉफ्टवेयर का, नहीं तो अगर इंडियन कंसल्टेंसी फर्म में कर रहे हो तो आज भी एमएक्स ही बहुत चले। सारे, हाँ एमएक्स रोड की मतलब काम करते हैं लोग उस पे भी। सर आप किसी को डाउट? ओपन रोड ट्रेन करते क्या सर? नहीं नहीं सर, ओके, वर्क ही ओपन नहीं करते सर ओनली अभी, सिविल 3D, ओनली सिविल 3D। कितना दिन लगेगा सर पूरा ट्रेन करने में?
शायद 40 डेज का ट्रेन होगा आपका, उसमें आपका आईआईटी पे उसमें पेमेंट डिजाइन भी रहेगा आपका। कितना दिन सर? 40 डेज का है उसमें, सिविल 3D और पेमेंट डिजाइन। लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने देंगे सर? हाँ, मैं एक प्रोजेक्ट शेयर कर दूंगा सर, आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी होगी। ओके ओके। आप प्रो ट्रेनी थ्रू ही आप ट्रेन करना चाहते हैं सर पर्सनली? नहीं, पर्सनली नहीं सर, इतना टाइम नहीं होता। तो जी ऐसा है, जो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप बता रहे थे ना, वो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता है, दुबई में इस तरह का सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहे थे ना, उसका मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं क्या? तो हम सॉफ्टवेयर को नाम लिख लेंगे। यस सर, मैं भी वही बोल रहा था। जो आप जैसे आईआरसी की चेक जो लिस्ट है वो बता रहे थे, और उसके बाद सॉफ्टवेयर बता रहे थे, तो वो सब आप एक बार पीडीएफ या जो भी है टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार वॉइस मिस हो जाती है। क्या आप बुरा ना माने तो चैट बॉक्स टाइप करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं, आप बताएंगे बेनिफिट लेंगे, आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। चैट बॉक्स में आप जरा टाइप करेंगे तो अच्छा होगा हमारे। सर, अब बेसिकली किस रिगार्डिंग? नहीं, जिस तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में, बिकॉज आई एम ए कंसल्टेंट। ओके। तो जैसा आप सिविल 3D के बारे में पूछ रहे थे ना, शायद आप बोल रहे थे ना, इसी तरह हम भी काम कर रहे हैं। पर अगर ओवरसीज मार्केट में जाएंगे तो आप जैसे बोल रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया में अलग सा होगा, दुबई में अलग सा होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे यूके में भी आपको एमएक्स वाले बंदे मिल जाएंगे, एटकिंस वगैरह में, बट बिल्कुल वो यूजर पे डिपेंड करता है। लाइक आप यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, आपका किस पे लाइक हैंडी अच्छा है, लाइक आपको किस पे काम करना चाहते हैं, जिस पे आप कंफर्टेबल। मान लो कि मेरे को सिविल 3D आता है, मैं एमएक्स नहीं आता, मैं ऑब्वियसली मैं सिविल 3D में वर्क, ऐसा कंपल्शन नहीं होता, क्योंकि आउटपुट आपको सेम ही मिलना है दोनों से। अच्छा, बिकॉज आप कंसल्टेंट है, आपको वर्क मिला के एनएचए से, तो आपको मतलब क्या, मतलब आप एनएचए थोड़ी बोले कि आपने एमएक्स से किया कि सिविल, उनको तो अपने आउटपुट से मतलब है ना। हाँ वो तो है, पर फिर भी आप एक बार उस सॉफ्टवेयर के बारे में उनका जो नाम है ना वो बता सकते हैं क्या? हम लिख लेंगे एक बार। एक तो सिविल 3D अपना जो यूके और स्वीडन वाली मार्केट में चलता है, एक नोवा पॉइंट करके है, नोवा पॉइंट, NOVAPOINT, नोवा पॉइंट। और एक 12D मीना करके है। 12D, हाँ 12D, हाँ 12D, 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 ओके, हाँ 12D, 12D। और ओपन नोड है सर अपना, ओपन नोड ORD है, वो तो बेंटली का है ORD। हाँ 4 हो गए। हाँ ORD तो बेंटली का है ना प्रोडक्ट। वही है एमएक्स ओपन नोड ORD। एमएक्स को सर इनरोड्स बोल देते थे, उसको ओपन नोड बोल रहे हैं बस। उसको शायद वो हटा दिया, शायद एमएक्स और इनरोड हटा के पूरा इंटीग्रेट कर दिया शायद ORD में। हाँ वो पूरा अब एमएक्स नहीं सर, थोड़ा चेंजेस हैं उसमें। अच्छा, थोड़ा चेंजेस हैं, बट मैंने और कुछ बोल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ बोल रहे थे सम नेम बोल रहे। सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, बहुत, मतलब आपको कहीं भी आप जाओगे, सिविल 3D सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, सबसे पुराना और सबसे बेसिक। अच्छा, ओके। इसमें कभी भी लाइक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बेंटले ने वो एमएक्स बंद कर दिया, ओपन नोड आ गया, उसमें आपको कभी नहीं मिलेगा ऐसे। तो ORD तो बहुत कम यूज होता है शायद इंटरनेशनल। अभी सर यूज अभी नया है ना, समथिंग इज न्यू इन द मार्केट, दे हैव टू। हाँ, सिविल 3D तो बहुत सालों से है, इसलिए उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। यस सर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आप मेरे से एक्सपीरियंस ज्यादा है, मुझे तो भी कम, 17% Thank you, because I thought you were mentioning some names. I thought maybe let me explore those also. That is why I am asking you. Yes, sir. Those names. Oh, thank you. सर ये 40 डेज के कोर्स में, हाँ बोलो अंकित। हाँ बोलो सर ये 40 डेज के कोर्स में सर आप कंपैरिजन भी करके बताएंगे कि इंडियन कोर्स में नहीं यार, एक्चुअली यार यूरोपियन कोर्स में ये है, एक्चुअली यार पता है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। नहीं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग। नो सर, उसमें एक्चुअली क्या है ना, नहीं वो डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको, बट मैं उस पर कंपेयर नहीं कर सकता ना, मैं एक ट्यूटर हूँ, कल को यार मुझे ही एमएक्स रोड पे काम करना पड़ गया या फिर ओपन रोड में,
नहीं सॉफ्टवेयर नहीं, कोर्स में कह रहा हूँ सर, वैसे आईआरसी कोर्स में ये है। अब अगर मैं हम तुम्हें यूरोपियन कोर्स में आईआरसी कोड से ही बताऊंगा तुम्हें सब चीजें। सारी चीजें आपकी जो पेमेंट डिजाइन होगा, आपका सिविल थ्री चलेगा, वो आईआरसी कोड पे ही चलेगा। क्योंकि पेमेंट डिजाइन में जब आप देखेंगे, आईआरसी की मेथोडोलॉजी अलग है, फिलोसफी अलग है, और एएसटीएम की अलग है, एस्टो की अलग है। ठीक है, तो दोनों की मेथोडोलॉजी अलग अलग है, कभी उनको मिक्स ही मत करो। जैसे कि जब हमें अपना एयरपोर्ट पेमेंट डिजाइन करना पड़ेगा तो हमें फा की गाइडलाइन चाहिए होती है, यूएस वाली। हाईवे की हमारी खुद की गाइडलाइंस है, तो हम उस पर ही वर्क करेंगे। ओके। फिर उसमें आपको मैं ओवरले कैसे डिजाइन करना है वो सब मैं पूरा लाइक मेरे पास जो मैंने प्रोजेक्ट किया है उसके डेटा को शेयर करूंगा, आपको करना, आपको एक्सरसाइज करनी होंगी, तभी आपको यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं टूल्स जाके चला जाऊंगा, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सिविल 3D पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा? यार वो आप पे डिपेंड करता है। सर ठीक है, प्लेस अगर प्लेसमेंट क्या प्लेसमेंट करते हो क्या सर? नहीं यार मैं नहीं, हाँ मेरा नहीं यार, मेरा उसमें कोई वो नहीं है। बड़ा यार ऐसा नहीं है कि यार बहुत कंपनी है यार, ऐसी कुछ नहीं है। बट हाँ ये है कि आपको स्टार्टिंग थोड़ा लो मिलेगा, बट आप आफ्टर 1 और 2 ईयर आप गैसअप कर लोगे चीजें। क्योंकि आपको कोई भी, आपको कोई किसी को, इवन मुझे भी कोई सीखने के पैसे नहीं देगा ना यार, वो मुझसे काम करवाएगा तो ही पैसे देगा। ठीक है, तो आपको 1-2 साल लगता है, टाइम लगता है उसमें, कोई नहीं, सब मेरे को भी लगा था एक। ठीक है, बट मैं उसमें काफी टेबल से काम कर रहा था। ठीक है, तो लगता है, सबको लगता है, मुझे भी 1-1.5 साल लगा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी को नहीं लग, जो बोल रहा है कि मैंने इतने महीने में, कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब आप नया प्रोजेक्ट करोगे, आपको हर प्रोजेक्ट में अलग अलग डिफिकल्टीज मिलेंगी, उसको आपको ओवरकम करना है, वही तो डिजाइन है। ना तो हमसे बेटर तो यार वो कोई साइड में बंदों का वो रोड बना सकता है। सर कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है? 31 शायद, 31। टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग शायद 8 to 9 ही रहेगा, या फिर 8:30 to 9:30। ओके ओके ओके। सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे ना सर, वो तो हमको खुद को लेना होगा, राइट? अरे यार स्टूडेंट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो यार, 30 डेज के ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। वो तो मिल जाएगा गूगल पे सर। 1 ईयर का आराम से फ्री है, 1 ईयर का फ्री है। ऑटोडेस्क से आप अपना स्टूडेंट वर्जन चला सकते हो 1 ईयर तक। परफेक्ट परफेक्ट। सर बेसिक नॉलेज के बाद सिविल 3D मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसके बाद फिर एमएक्स रोड करना होता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एमएक्स के लिए, ये आप वो चीज सीखो जो मतलब आपको लगता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लाइक बेसिकली जैसे मुझे सिविल थ्रीडी सीखना था, मैंने आज तक एमएक्स पे मतलब एक दो बार ट्राई किया, 1-2 प्रोजेक्ट का हुआ जैसा भी हुआ, फिर मैंने उसमें कभी वर्क ही नहीं किया। जी ठीक है, तो वो चीजें नहीं होती सर, है। एक्चुअली मेरा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है, क्योंकि मैं अभी मेनली बिल्डिंग लाइन में वर्क कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर। तो मैं टोटली डिजाइन में, हाईवे डिजाइन में एंट्री करना चाहता हूँ। तो मतलब सबसे बेसिकली कौन सा, मतलब सिविल 3D ही स्टार्ट करना पड़ेगा पहले? हेलो। सिविल 3D का तो आप यूज कर सकते हो, बिल्डिंग लाइन में भी कर सकते हो। पार्सल जो क्रिएट होते हैं, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम होते हैं, पाइपिंग ये सब का जो हो गए, इन सब में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो सिविल 3D का। ओके। होता है वो मेरा हाईवे के लिए काम नहीं आता है, बेसिकली ऐसा नहीं पाइपलाइन। है। हाँ ठीक है, पार्सल होता है, आपको कोई सिटी प्लान करनी है, वहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी देखना होगा रोड का, तो वो आपका बेसिकली उसको बोल देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बोल देते हैं। थोड़ा सिविल का है, थोड़ा मतलब हाईवे का है, थोड़ा बिल्डिंग का, तो उसको कंप्लीट हाईवे भी नहीं बोल सकते, कंप्लीट बिल्डिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। हाँ, बहुत बहुत उसमें यूज हो जाता है। ओके सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि एमएक्स रोड थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, अभी ये ओपन रोड स्टार्ट हुआ है, बेंटले ने स्टार्ट किया है। तो मतलब अभी जैसे सिविल 3D सीखने के बाद एमएक्स रोड अगर सीखते हैं तो वो यूजेबल उतना रहेगा कि नहीं, मतलब, या फिर क्या तो क्लाइंट ओपन रोड? लाइक वो तुम पे डिपेंड करता है यार कि तुमको कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना है। कोई तुमको जबरदस्त मतलब ऐसे कोई ये नहीं बोलने वाला कि तुमको अच्छा उसको एमएक्स वाली फाइल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा हाँ, ऐसा कंपलसरी आउटपुट से मतलब है उसको। आउटपुट सबका एक ही है भाई, चाहे किसी में भी काम कर लो, लास्टली ब- आउटपुट मैटर करेगा और कुछ मैटर नहीं करेगा। आपको आउटपुट ओके प्लान प्रोफाइल बना के ही देनी होगी, वो भी A4 शीट A0 शीट पे, बस बस वो बिल्कुल मैटर सही है। करता है। गुड इवनिंग सर। या अमन? सर सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका हाईवे डिजाइन में जो जीएसबी और डब्ल्यूबीएम करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था मैं। जीएसबी बेसिकली हम डालते हैं, एक सेपरेशन लेयर का काम करता है, ठीक है, और एक आपका ड्रेनेज लेयर के लिए काम करता है, ठीक है। और आपका जो WM होता है उसमें क्या एग्रीगेट, मतलब उसमें क्या वो वाटर बाउंड वेट मिक्स में कार्डम, ठीक है। बेसिकली आप उसको मतलब वो एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे उसमें आप, जैसे जैसे आपकी लेयर ऊपर जाती रहेंगी, यहाँ पे लोड टच करेगा मेरा व्हील लोड, वहाँ पे मटेरियल अच्छा आता रहेगा, इसकी डेंसिटी मतलब इसकी मॉडुलस ज्यादा होगा, होता वो भी इसमें एग्रीगेट ही है, ठीक है। सर जीएसबी के लिए लेबोरेटरी टेस्ट क्या किया जाता है? एक्चुअली यार वो और जीएसबी जीएसबी के लिए आपको मिनिमम शायद 30% CBR ऐसे कुछ CBR राइट बेस सर, पे जाता है। मिनिमम 30% सीबीआर चाहिए। हाँ, और वो ग्रेडिंग डिपेंड करता है, वो 5 वो ग्रेडिंग्स में डिवाइडेड है। मोर्थ में 5 हाँ ग्रेडिंग, टेबल नंबर 40 1 दिया हुआ है। 3 ऐसा कुछ है, राइट सर। हाँ नहीं नहीं, क्लोज नंबर 40 है, हाँ 400, उसमें आपको मिल जाएगा। सर और लेयर कितना होगा, लेयर का थिकनेस कितना होता है सर इसका? वही तो डिजाइन करना है यार, अच्छा ओके सर ओके। वही तो डिजाइन करना है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। आशीष सर यार, सिविल 3D में हाँ हाँ, पेमेंट एनालिसिस भी हो सकता है, होता है सर? नहीं वो तो MX में भी नहीं होगा सर। MX में तो नहीं होता है। आईडी पे IIT पे सर अलग सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड बाय IIT खड़गपुर, ओके ओके, तो उसमें आपको करना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें शेयर कर दूंगा। ओके। और किसी को डाउट है? या मोहम्मद शहजाद खान, ऐसे यार ऑनलाइन ऐसे कोई ज्योमेट्री आपको कोर्स ही पढ़ने होंगे, जहाँ पे आप डिजाइन करोगे उस कंट्री के आपको कोड ही पढ़ने होंगे। राइट सर। और डाउट है तो पूछ सकते हो। अमन अपने आपको म्यूट कर लो। अरे अमन अपने आप को म्यूट करो, ट्रैफिक नॉइस आ रहा है। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अरे फिनिश करते हैं। सर ये जैसे जो हाईवे डिजाइन में जो ब्रिजेस आते हैं बीच में, तो ये हाईवे हम्म। इंजीनियर को ही डिजाइन करके देते हैं या उसके लिए अलग टीम, अलग इंजीनियर्स होते हैं? अरे हाईवे में क्या आता है, मतलब स्ट्रक्चर का पार्ट है ना यार, वो आप सिर्फ अलाइनमेंट करके दोगे इसको। हर वो उसको अलग अलग टीम डिजाइन करती है सर, ब्रिजेस जो आते हैं, स्मॉल ब्रिजेस। स्ट्रक्चर ब्रिज इंजीनियर की टीम रहती है, स्ट्रक्चर वाले जिसको बोलते हैं। ओके, अंडरपासेस एंड ऑल। कोई भी हो, अंडरपास हो, फ्लाईओवर हो, कुछ भी हो, वो ब्रिज की टीम देखेगी ना यार, वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा काम है अलाइनमेंट देना उसको। वो हमें प्रपोज कर सकता है कि भी आपको आपने 2 मीटर 3 मीटर का हाइट ले लिया, पियर का कम कर दो, तो वो सजेस्ट कर सकता है, बट करना आपको ही है।
कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आरशी मैम, कोई या देवा देवराजा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। हेलो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर वरना यही वाइंड अप करते हैं इसको। नहीं सर, सच तो कोई डाउट नहीं अब तो। आशीष, तुम क्या ज्योमेट्री वाले डिपार्टमेंट में हो आईसीटी में, या फिर पेमेंट में? ना सर, ना मैं ज्योमेट्री में ना पेमेंट एग्जीक्यूशन में हूँ सर, एज असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर। कब से काम कर रहे हो वहाँ पे? मुझे हो गया सर लगभग 3 साल हो गया सर अप्रोक्सीमेटली। वहाँ पे मेरी कोलिग थी पहले, रेनू शर्मा, पेमेंट में। ओके ओके ओके। मैं तो सर हमेशा साइड ऑफिस ही रहा हूँ, तो कभी हेड ऑफिस विजिट नहीं हुआ। एक अभी ज्योमेट्रिक में है वहाँ पे, देवेंद्र सर करके है। ओके ओके। देवेंद्र पाठक, डिजाइनर है आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी सर। ओके जी सर। या देवराजा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ऑपरेशन Sir, yes, sir. Hello. I think that now nobody has any doubt, so we Okay. can wind up now, right? Okay. Okay. Or you want to continue the session, sir? No, tomorrow we'll have a demo session, na? We will Yes, sir. continue Yes, tomorrow. sir. Okay, so thank you, everyone. I hope you enjoyed this session, and I have just shared a link which you can fill that form so that we can provide you a certificate of this workshop. So just click on the chat box I have filled there, written there. Okay. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you Thank you, sir, thank Amit. you so much sir. Thank you, Ashish. Thank you, Amit. Thank you, sir. Thank you Amit sir, thank you sir. Thank you all. हेलो, अमन गुप्ता सर। हेलो, अमन गुप्ता सर। हेलो, अमन गुप्ता सर।